हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान चैप्टर 6, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिलीजियस एंड सोशल अवेकन इन द कॉलोनियल इंडिया, यानी औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक प्रगति। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम हर एक विषय पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, a desire to be changed, social, religious and awakening. This is an important topic here, a desire to be changed. What do you mean desire to change here? What do you think could be a reason that lead to the awakening of the peoples against discrimination and inequality? There is a most important question here. What do you think could be a reason that led to be the awakening of the peoples against discrimination and inequality? Reformers like Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chand Vidyasagar and Swami Dayanand Saraswati and Jyotibai Phule, Asar Ahmad Khan and Pandita Ramabai understood that ignorance and the backwardness in the society was responsible for the hindering its a progress and development. And this realization is reinforced when they come in contact with the Europeans and found that life was very different in the other part of the world. You know that there is a most important thing here. There is the Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar, Swami Dayanand Saraswati, Jyotibai Phule, Ahmad Khan and Pandita Ramabai. There is more understood here. Their development and progressive. This realization has reinforced them to come contact with the European and found that life was very different in other part of the world. When the British missionaries started to spreading Christianity, there is a satirized and questioned many of our social and religious practice here. Many of there is idea were accepted by our reformers. The desire for reform in their society was so strong that these reformers was now ready to face challenges as well as resistance from the orthodox Indians, and they start to several movement to bearing or desirable changes in the society. That is important. This was made possible to the inheritance of people like Swami Dayanand Saraswati and Raja Ram Mohan Roy. They studied their religious scripture and realized there is a prevalent religious and social practice. According to them, society should be based on the concept of liberty and equality both for a man and woman, and this was possible. This was made possible by the inheritance people like Swami Dayanand Saraswati and Raja Ram Mohan Roy. They study the religious scripture and realize there is a prevalent religious and social practice. According to them, society should be based on the concept of
liberty, and equality, both for man and woman. And this was possible only by the spread of modern and scientific education, especially among the women. This moment come to be called social religious movement because the reformers left that no change is possible in a society without reforming their religion. We will read up further to know why the education and privileges were to the able to buy only the upper class in society. That is important. The next year, the caste system. The caste system of 19th century, there is the most important effect here. See, in the same time, Indian society had a caste system which was originally occupations based. There is a caste system. There is a occupational base, and over to period of time, interruptions of the religious texts by their upper caste and lack of access to religious scripture by the lower caste is lead to be several supervisional practice and the name of religious. And this also result in the power we gain to the concentrated in the upper caste and exploitations of lower caste. That is important. Hindu society was based on a Varna system. The Hindu society based on a Varna system, that is a Varna here, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. There is a Hindu society, there is a belief here for Varna. There are Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. According to this system, people were divided on the basis of their occupation. The people who were engaged in praying and worshipping the gods were categorized in the Brahmans. You know that the people who were engaged in the praying and worshipping the god were a category of their Brahmans. And those who were engaged in a war were called as Kshatriya. The word is only recognized there as Kshatris here. And those whose occupation was agriculture and trading were known as the Vaishya. And those who used to be serve the upper three ones were known as the Shudra. You know that Brahman is a prayer and worshipping, Kshatriya is only there participate in a war, and there is a Vaishya is a agriculture and trading. There is a work for the Vaishya. And Shudra here, there are three upper ones. There is a give to the serve. There is a Shudra. And this caste system, which was purely based on occupation, had become a heredity. A person born in the particular caste could not be changed his caste even though their mind have changed their work. And this create inequality in a society. It also lead to explorations of lower castes. Therefore, a caste system has become a major hindrance in the development of healthy, democratic, and progressive society. The caste system had become a major hindrance in the development of healthy, democratic, and progressive society. The many social religious reformer and organization stepped forward to the fight against the social practice. Organizations such as Brahma Samaj and Aryan Samaj and Prathana Samaj, Rama Krishna Mission and reform like Jyotibai Phule and Pandit Ramabai and Sri Narayan Guru, Priyas Vivekanand and Mahatma Gandhi and many others strongly protest against this rigidity. There's a rigidity, there is a protest is a main important person, and most reformer consider to the prevalent caste practice there is against the original spirit of the Vedas and other scripture. This consider there is caste system is a irrigation and unscientific here. They felt it was against the basic rules of humanity. The untiring and the relentless effort of the social reformer helped to people to become a more tolerant toward the each
other. The next here, the prevalent religious practice here. The prevalent religious practice. Most of the social practice were done in the name of religion. Here, social reform had no meaning without religious reform. Our reformers were deeply rooted in India traditional and philosophy and had a sound knowledge of the scripture. They were able to be blend positive Indian value with the Western idea and the principle of democracy and equality. On the basis of the understanding, they challenge there is a rigidity and supervisions as a practice in the religions. Besides, there is scripture to be show that the practice is prevalent during the 19th century and find no signification in them. The resistance and the religionists among them questioned the popular religious which was full of the superstitions and they exploited by the corrupt priest. That is important. The reformers want to society to concept the rational and scientific approach. Rational and scientific approach here. And they also believed in a principle of human dignity and social equality of all human and man. The next here, the educational scenarios. The educational scenarios is important here. In the 19th century, many children, especially girls, were not sent to school on this period of time. Education was imparted in the traditional Pathshala, Madrasa, and Mosques and Gurukul. There is this question here imparted to traditional here, Pathshala, Madrasa, Mosques and Gurukul. Religious question was imparted to along with their subject like Sanskrit, grammar, arithmetics, religious and philosophy. There is a most important subject on this period time. Science and technology had no place in the curriculum. The many supervisions is a belief resided in the society. In the content community, girls were not allowed to be educated on this period time. It was thought that educated women would be soon become a with them after marriage. But in the relatives, lack of education and awareness was the root causes of social and religious backwardness among the Indians. So it was important to promote a modern education. Also, social religious reformer, whether the Hindu, Muslim, Sikh, and Parsis, aimed to be spread the modern education. They believed that education was the most effective tool to be awaken and modelize our society. कहते हैं जब जब जो है समय का दुराचार जो है लोगों पर जो है कहर बरसाई है तब तक कोई ना कोई महान पुरुष जो है अपना विचारधारा से जो है जन को जो है मक्तमुगन किया है और कहते हैं ये सदैव चलती रही है और ये सदैव चलता रहेगा कि जब जब समाज में बुराई फैलेगा तब तक किसी न किसी विचारधारा जो है जनमानस को जो है सही रास्ता दिखाएगा। यही हमारा अगला पॉइंट भी बता रहा है कि परिवर्तन का इच्छा और सामाजिक धार्मिक जागृति। देखा जाए अगर परिवर्तन की इच्छा है और वो चीज़ गलत है तो 100% जो है किसी ऐसे थिंकनर की बातें समय उजागर होती है और उनको सभी लोग बेशकली उसको मान भी लेते हैं। आपको अनुसार लोगों में भेदभाव और असमानता के विरुद्ध जागृति के क्या कारण हो सकते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोगों में भेदभाव और असमानता के विरुद्ध जागृति के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखा जाए कहते उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था, लेकिन जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिन्होंने शब्दों का ज्ञान हासिल किया, तब उनको समझ में आया कि जो समाज में फैली हुई बुराई है वो समाज में नहीं रहना चाहिए। और कहते हैं इन महान पुरुषों में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्योतिबाई फूले और सर सैयद अहमद खान और पंडित रमाबाई जैसे कई सुधारक समझ गए ठीक है अज्ञानता और समाज में पिछड़ापन की प्रगति विकास में बाधा के लिए जिम्मेदार थे। कहते हैं अगर अनपढ़ता रहेगी तो लोग सही नहीं समझ पाएंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कहते हैं अगर समझदार व्यक्ति से उसी विषय पर प्रश्न करोगे तो समझदारी की बात बताएगा,
लेकिन अगर जिसके पास एजुकेशन के अभाव है वो कदाचित अपने विचारधारा को नहीं आगे बढ़ाएगा, वो सदैव ही दूसरे की बातों का अनुसरण करेगा। कहते हैं जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है तो सोचने की क्षमता आती है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो दूसरे की बातों पे और दूसरे की बातों को जो है सहज मान जाना आम रहता है, क्योंकि वह पिछड़ापन का शिकार होता है। इस बात का उनकी एहसास तब हुआ जब वे यूरोपियों के साथ संपर्क में आए। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो हम समाज सुधारक के नाम लिए, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्योतिबाई फूले और सर सहमद अहमद खान और पंडित रमाबाई, कहते इनको भी उस समय इतना समझ नहीं थी, लेकिन जब उनको एहसास तब हुआ जब वो यूरोप के संपर्क में आए और पाया कि उनका जीवन दुनिया के अन्य भागों से बहुत ही अलग है और बहुत ही सुलझी हुई है। तब इनको भी समझ में आया कि जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई है ये कदाचित भी उचित नहीं है। तब जाके इन्होंने बहुत ही मेहनत से और लोगों की जो है बेरुखी के सहते हुए आगे ये बढ़ते चले गए और उनका जो मिशन था उसमें वो कामयाबी भी हासिल किया। कहते हैं ब्रिटिश मिशनरी ने जब ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया तब उन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की आलोचना की तथा उन पर कई प्रश्न चिन्ह उठाए। समाज में सुधार लाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि परंपरागत रूढ़िवादी भारतीयों के विरुद्ध तथा चुनौतियों के बावजूद इन समाज सुधारकों द्वारा समाज में वंशज परिवर्तन लाने हेतु अनेक आंदोलन शुरू किए गए। कहते हैं जब विचार सही हो और जग कल्याण की हो तो लोग भी साथ देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब आम व्यक्तियों का जो है साथ मिलता है। इसलिए त्रिपाण सेंटर हमेशा सभी दोस्तों से यही कहता है कि आपकी साथ की आवश्यकता है और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आप ही मदद कर सकती हो, क्योंकि अच्छी बातें पहुंचाने के लिए किसी कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होता है। कहते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से समाज में आंदोलन होना अत्यंत अनिवार्य होता है, तभी समाज जो है बदलेगा और कहते हैं आगे समाज तरक्की भी कर सकेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय ने जैसे प्रबुद्ध लोगों द्वारा ही उनमें संभव बनाया गया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की पूरी तरह से आलोचना भी की। उनके अनुसार समाज पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा चाहिए और ये उचित भी है। समाज सिर्फ दो ही व्यक्तियों से सदैव चलता है, एक तो पुरुष दूसरा स्त्री, फिर इतने भेदभाव क्यों? जब समाज दो पहियों पे चलती है, एक स्त्री से एक पुरुष से, फिर इतनी भेदभाव क्यों? इतने रूल रेगुलेशन एक दूसरे से अलग क्यों? तो यही बात इन विचारकों ने सोचा कि जब समाज दो पहियों से चलती है तो लड़कियों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही, लड़कों को अधिक महानता क्यों दी जा रही है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उनके समक्ष था और इसका सलूशन कोई आम नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे समाज में अंधविश्वास ने पूरी तरह से जो है लोगों में जकड़ रखा था और लोग अनपढ़ों के शिकार थे। मैंने जर्नली से आपको बात बताई है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है, 2 मिनट विचार करता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो दूसरे की बातों का अनुसरण करता है, दूसरे की बातों पे आग लगा देता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे समाज में जो सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं, कहते हैं पढ़े लिखे लोग जो होते हैं अनपढ़ लोगों को भड़का रहे होते हैं, तरह तरह की बातें उल्टे पुल्टे बता रहे होते हैं और देश को जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब तक समाज शिक्षित अच्छे से नहीं होगा तब तक भारत विकास की रास्ता को पूरा नहीं कर सकेगा। तो ये बात उस समय बड़े बड़े थिंकरों ने सोचा और समझा कि समाज में पुरुषों और स्त्रियों से ही समाज का निर्माण हुआ है और इनके सिवा दोनों के सिवा कोई है नहीं। तो दोनों की जो मात्राएं होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, नहीं अगर एक की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी और एक कम जाएगा तो जर्नल सी बात है समाज की जो है संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इन्होंने बहुत से आंदोलन किए, बहुत से तकलीफ सहे और देखा जाए तो ये महिलाओं के बीच विशेष रूप से आधुनिक और वैज्ञानिक जो है शिक्षा के प्रसार से संभव था, क्योंकि जब तक महिलाओं को भी जो है आधुनिक शिक्षा न दिया जाए और विज्ञान का नहीं समझाया जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कोई भी समाज में जो है
अगर घर में कोई औरत बुजुर्ग है तो उनकी बातों को काफ़ी मानी जाती है। अगर वो समझदार रहेगी तो जो कुप्रथाएं हैं उनसे बचा जा सकता था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने इस बात को प्रौढ़ी दिया और इन्होंने जो है काफ़ी जो है आधुनिक शिक्षा और जो है वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया। और ये आंदोलन सामाजिक जो है धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जाना जाता है, क्योंकि सुधारक ने महसूस किया कि धर्म में सुधार के बिना समाज में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। क्योंकि लोग उस समय सिर्फ धर्म को ही अपना सबसे उत्तम उपाय मानते थे और धर्म के हर एक बात को जो है अच्छा मान के अनुसरण करते थे। इसलिए उनको सबसे पहले तो धर्म के अंतर्गत समझाने की आवश्यकता है कि धर्म हमें कभी गलत रास्तों पर चलने की इजाज़त नहीं देता है और गलत काम करने के लिए कभी भी हमें नहीं कहता है। इसलिए धर्म हमें सदैव ही अच्छी शिक्षा देता है। तो ये बात समझाना काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमें आगे बढ़ने से पता लगेगा क्या शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं समाज में केवल उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध थे। तो ये बात सच है कि उस समय शिक्षा जो थे उच्च वर्गों के लिए ही थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जाति व्यवस्था। देखिए, जाति व्यवस्था उस समय काफ़ी हमारे समाज में जो है घर कर रखी थी। प्राचीन काल में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मूल्यतः व्यवसाय पर आधारित थी, यानी जो जैसा कार्य करता था उसको उसी तरह की जाति प्राप्त होती थी, या जिस जाति से वो संबंध रखता था उसी तरह के व्यवसाय उसको निर्धारित होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उच्च जाति के द्वारा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और निम्न जाति की धार्मिक ग्रंथों से दूरकरण कई अंधविश्वास प्रथाओं का प्रचलन हुआ। क्योंकि आपको पता ही है कि धीरे धीरे क्या हुआ, उच्च जाति के लोग जो थे धर्म में अपना परम अधिकार समझने लग गए और इससे क्या हुआ, जो नीच जाति के निम्न जाति के लोग थे उनको शिक्षा उच्छा से सभी से दूर रखा गया और उनको एक अंधविश्वास के जो है काल कोठरी में धकेल दिया गया। और जो धार्मिक लोग बोलते थे वही जो है आम व्यक्तियों को करना पड़ता था। कभी उनको मौत से डराया जाता था, कभी उनको देवताओं से डराया करते थे। हर तरह की जो है वो हड़कंडे अपनाया करते थे। इसके परिणाम स्वरूप उच्च जाति के हाथों में सत्ता आ गई और निम्न जाति शोषण के शुरुआती हो गए। लेकिन आज यहाँ पर उल्टा है, समय बदला। आज हर क्षेत्र के व्यक्ति जो है प्रशासन के यहाँ सत्ता में आ रहे हैं, जो ज़रूरी भी है। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था जो थी मुख्य तौर पर 4 पर आधारित थी। एक तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे, वैश्य और क्षूद्र पर आधारित थी। और इस व्यवस्था के अनुसार लोग उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था। यानी ब्राह्मण को अलग कैटेगरी में रखी गई थी, क्षत्रियों को अलग कैटेगरी में, वैश्य को अलग कैटेगरी में और क्षूद्र को अलग कैटेगरी में। तो इसके बारे में विस्तार से हम आगे देख रहे हैं। जो लोग ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ के काम में लगे होते थे उन्हें ब्राह्मणों के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी ब्राह्मण का काम था सिर्फ प्रार्थना कराना, पूजा पाठ कराना और धन वसूलना। जो युद्ध में लगे होते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे। जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था उस समय। और जिनका व्यवसाय कृषि और व्यापार था वो वैश्य के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जो ऊपर तीनों वर्णों की सेवा कार्य में लगे होते थे उन्हें क्षूद्र कहते थे। जनरली अगर शब्दों में देखें तो कहते हैं मुख को जो है ब्राह्मण कहते थे, बाजू को कहते थे क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैर को जो है क्षूद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। जैसे आप चप्पल जूते जो घर के बाहर रख लेते हो तो उनमें क्षुद्र के रूप में उनको परिभाषित किया गया। और मुंह का मतलब जो बोला गया वो ब्राह्मण का शब्द, और बल यानी बाजू क्षत्रिय का, और पेट के कार्य के लिए जो कार्य करते थे जैसे किसान तो वो जो होते थे वैश्य होते थे। तो ये 4 वर्ण जो थे उस समय समाज में अपनी घर कर चुकी थे और इसके अतिरिक्त वो किसी दूसरे कैटेगरी में जा नहीं सकते थे। जिनका जो वर्ण होती थी उन्हीं में रह के, उन्हीं के दायरे में रह के अपने कार्य को संपन्न करना होता था। यह वर्ण व्यवस्था जो विशुद्ध रूप से व्यवसाय पर आधारित थी बाद में वंशागत हो गई। यानी जो उनके वंशज होते थे वही कार्य उनको भी अपनाना होता था। लेकिन आज हमारे समाज में हर कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य जो भी हो, उसका कोई यहाँ पर मान्य नहीं है। किसी एक विशेष जाति पैदा हुआ व्यक्ति अपनी जाति के बदल नहीं सकता था।
यानी आप जिस जाति में जन्म ले चुके हो आप अपना व्यवसाय वही अपनाना पड़ेगा और उसी जाति में रहना पड़ेगा। यद्यपि वह अपने काम को बदल सकता है। विशेष समाज में असमानताओं को जन्म लिया और इसे निम्न जाति का शोषण होने लग गया, जिसके कारण जाति व्यवस्था एवं उच्च लोकतांत्रिक और प्रगति समाज बनने में बाधक हो गई। समाज में जन्मी इन कुरीतियों के विरुद्ध कई समाज सुधारक सामने आए। जैसे देखा जाए तो समाज गठन संगठन में जैसे ब्राह्मण समाज था, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन सुधारक जैसे ज्योतिबाई फूले, पंडित रमाबाई, नारायण गुरु, पेरियार, विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा कई दूसरे अन्य सबका विरोध था। यानी सारे के सारे समाज में जो फैली हुई वर्ण व्यवस्था थी उस पर इन्होंने जोरदार प्रहार किया और अधिकांश तर्कों ने जाति प्रथा को वेदों और जो है धर्म ग्रंथों के विरुद्ध भी माना, क्योंकि धर्म ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी। उनके अनुसार जाति व्यवस्था आंतरिक और अवैज्ञानिक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह मानव की बुनियादी नियमों के खिलाफ थी और समाज सुधारकों के सार्थक और अनवरत प्रयासों ने लोगों के जो मदद की, जिससे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता जागृत हुई। आपको पता है कि पहले छुआछूत की भी बहुत बड़ी समस्या थी हमारे समाज में, लेकिन देखा जाए तो इन महान पुरुषों के कारण समाज में बहुत सी बुराइयां खत्म हुई, वो जरूरी भी थी। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट प्रचलित धार्मिक प्रथाएं। हमारे समाज में उसमें बहुत से ऐसी धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी। कहते अधिकांश सामाजिक प्रथाएं धर्म के नाम पर ही की जाती थी। सारे के सारे कार्य जो होते थे धर्म के नाम से ही करते थे और धर्म से ही आगे बढ़ते थे। इसलिए समाज सुधार धार्मिक सुधार के बिना कोई अर्थ नहीं रहता। जब तक समाज सुधार नहीं होता धर्म में कोई तरह का सुधार करना संभव नहीं था। हमारे समाज सुधारकों के भारतीय परंपरा और दर्शन का गहन ज्ञान था और शास्त्रों का भी ज्ञान उस समय था और वो पश्चिम विचार और लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों के साथ सकारात्मक भारतीय मूल्य का मिश्रण करने में सक्षम थे। क्योंकि जब तक कहते हैं पश्चिमी विचार और लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत को नहीं मान्यता दिया जाता तब तक ये होना संभव नहीं था। और इन ज्ञान के आधार पर उन्होंने धर्म में कठोरता और अंधविश्वास प्रथाओं की चुनौती भी दी, क्योंकि कठोरता और अंधविश्वास को चुनौती देना उस समय बहुत ही अनिवार्य बन गया था। उन्होंने शास्त्रों का दृढ़ करके बताया कि 19वीं सदी के दौरान प्रचलित प्रथाओं को किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं मिली है। यानी कोई भी शास्त्रों में और ग्रंथों में ऐसी बात नहीं लिखी गई थी। प्रबुद्ध और प्रबुद्धवादी लोगों में लोग प्रचलित धर्म पर जो अंधविश्वास से भरा पड़ा था, पुजारियों के हाथों शोषण का एक मंत्र बना हुआ था। यानी उस समय पुजारी लोग जो थे सिर्फ लोगों का शोषण किया करते थे, पर उनके पास कोई प्रश्न उठाता ही नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो प्रश्न उठाएंगे तो उनके साथ बुरा होगा। ये समाज सुधारक चाहते थे कि समाज तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करे, क्योंकि कहते हैं कुछ बातें सही भी है तो कुछ बातें गलत भी है। तो समाज में अगर तर्कसंगत न हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण न हो तो उस बात को जो है मानना संभव नहीं रह गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शैक्षिक परिदृश्य। देखिए शैक्षिक परिदृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। 19वीं सदी में अनेक बच्चे खासकर लड़कियों और स्कूल नहीं भेजा जाता था। यानी देखा जाए 19वीं शताब्दी में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा पारंपरिक पाठशालाओं, मदरसों, मस्जिदों और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी उस समय। और धार्मिक शिक्षा के साथ संस्कृति, व्याकरण, गणित, धर्म, दर्शन जैसे विषय को पढ़ाया जाता था। यानी उस समय जो शिक्षा का मुख्य केंद्र होती थी, पाठशालाएं होती थी, मदरसे होते थे, मस्जिदें होती थी और गुरुकुल होता था। और उस समय सिर्फ मात्र जो विषय होती थी संस्कृति, व्याकरण, गणित, धर्म, दर्शन जैसे विषय को ही पढ़ाया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में कोई जगह उस समय सम्मिलित नहीं था। कई अंधविश्वास मान्यताओं का समाज में अस्तित्व था और कुछ समुदायों में तो लड़कियों की शिक्षित करने की अनुमति ही नहीं थी। लड़कियों को उस समय शिक्षा दी नहीं जाती थी और यह सोचा जाता था कि शिक्षा महिलाएं शादी के बाद जल्दी ही विधवा हो जाएगी। यानी शिक्षित महिलाएं शादी के बाद जल्दी विधवा हो जाएगी, इसलिए औरतों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और ये भी एक अंधविश्वास था। और ये अंधविश्वास उन बड़े बड़े पंडितों को दी गई थी। उनका विचारधारा था कि कोई भी स्त्री अगर पढ़ लिख लेती है
तो उसका पति का जो है बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगा। इसलिए माता पिता कभी भी बच्चों को शिक्षा देने के तर्क में नहीं थे। लेकिन वास्तविक में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही भारतीयों के बीच सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन का मूल्य कारण थी। क्योंकि शिक्षा का, देखिए, कहते हैं शिक्षा का स्तर होना हर क्षेत्र में ज़रूरी होता है। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपना विचार सोचने लगता है। अगर शिक्षा नहीं हासिल होगा तो आपको जो व्यक्ति जो भी कहेंगे आप मान लोगे। अब देखिए, अगर आधुनिक समय के साथ बात करें तो आपको पता है कि दुनिया में कोई भी किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता है। देता है? नहीं देता है। क्योंकि ये दुनिया का रीति है। आप सोचोगे कि हमें हवा फ्री मिलती है, हमें सूरज की रोशनी फ्री मिलती है, लेकिन ये भी हमसे कुछ मांगते हैं। हमसे ये कहते हैं कि अगर आपको हवा शुद्ध चाहिए तो आप पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाओ, तभी मैं स्वच्छ रहूँगा। यानी हमसे भी वो कुछ मांग रहे हैं। सूरज कहता है कि इतनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है, आप प्रदूषण न फैलाओ, तो वो भी हमसे कहते हैं कि हमें अधिक प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। अब देखिए, पानी भी ये कहता है कि अगर मुझे स्वच्छ चाहते हो, मेरा अगर रक्षण करना चाहते हो, तो मुझे साफ़ सुथरा रखो। तो हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है हमसे। फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। तो आज देखिए, पॉलिटिकल में देखिए, जाइए पॉलिटिशियन में, वहाँ पर फ्री के जो होड़ लगे हुए हैं ना, तो वो अब ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको फ्री का अर्थ नहीं समझ में आता है। और फ्री का मतलब समझते हैं कि उनको फ्री में मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता उनका ज्ञान नहीं है कि कोई भी सरकार होती है एक जगह से कुछ भी, अगर एक चीज़ को अगर फ्री करने को सोच रही है तो वही कर जो है दूसरे चीज़ों पर लगा के उससे पैसा वसूल लेती है। तो फ्री का लेने का मतलब है अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारना। और इससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति फ्री का अधिक लालच देता है वो विजय हो जाता है। और ये सिलसिला हर क्षेत्र में होगा। कभी आपको पानी फ्री दिया जाएगा, बिजली फ्री दिया जाएगा, कभी आपको रोडवे फ्री किया जाएगा, कभी आपको अन्न फ्री दिया जाएगा, कभी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो समझिए सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो सोचिए एक विचार, अगर यही सिलसिला चलता रहा, राजनीतिक में यही सिलसिला फ्री देने की चलती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ फ्री होगा। तो सोचिए कौन काम करेगा, कौन जिएगा, कौन रहेगा? फिर सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार क्या स्पेशली काम करने जाएगी आप लोगों के लिए? आपके लिए खेत में हल चलाने जाएगी आपके पेट भरने के लिए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए कोई भी अगर आपको फ्री का लालच दे रहा है तो आपको इनकार कर दीजिए। कहिए मुझे अच्छा राजनीतिक चाहिए, सुचारू चाहिए, भ्रष्ट राजनीतिक नहीं चाहिए। और ये नहीं कि हम वीडियो बनाएं और आपको वीडियो दें और आप उस बंदे से हमारी दुश्मनी गला कटवा दो। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप किसी वीडियो बना रहे हो तो क्या आपको वो बंदा छोड़ देगा? अगर वो बंदा जेल में जा रहा है, उसकी जॉब जा रही है, तो वो आपको छोड़ेगा? संभव ही नहीं है। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। सरकार अगर सख्त होती है तो ऑटोमेटिक जो है करप्शन दूर हो जाएगी। सरकार अगर हर क्षेत्र में जा के देखती है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ करप्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। अब सरकार कहीं जाती है, पधारती है, तो आपको पता है 1 महीना पहले ही अलर्ट की घंटी बजा देती है। तो हर क्षेत्र को सजाते हैं, अच्छे बनाते हैं, हर भ्रष्ट नेताओं को हटा देते हैं, लोगों को हटाते हैं। स्कूल में जाइए तो वहाँ पर जो बच्चे अनपढ़ टाइप होते हैं उनको भी हटा देते हैं कि भाई आप स्कूल, आप 2 दिन की छुट्टी है। यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं, वो यहाँ पढ़े लिखे व्यक्तियों के से ना बात करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे जो इंग्लिश थोड़ा बोलने जानते हैं, तो उनका समझ है, माँ बाप ने एजुकेशन पर अच्छा ध्यान दिया है, तो उन बच्चों को स्कूल में रख लेंगे और मंत्री जी के सामने प्रस्तुत कर देंगे कि देखिए हमारा शिक्षा कितना अच्छा चल रहा है, उन्नत चल रहा है। तो ये होती है करप्शन सुधारने की तरीका कि हम बिना बताए जाएं और देखें कि वहाँ पर वास्तविकता क्या है, तब सुधरेगा। आपके लालच दिए हुए से लोग सिर्फ गलत चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं। आज कई क्षेत्रों में चले जाइए, लाइट ऐसे ही चल रहा है। जहाँ जहाँ फ्री की है सरकार ने, लाइट ऐसे ही चल रहा है। ट्रांसपोर्ट सरकार ने फ्री किया है, वहाँ पर लोग जो होते हैं अनचाहे मन चाहे जितने मर्जी अप डाउन कर रहे हैं। काम नहीं भी होता है, चलते हैं शॉपिंग करने, चलिए बस तो फ्री है, चलते हैं, बैठते हैं, चलिए। तो इससे हमारा समाज सुधरेगा नहीं, समाज हमारा बिगड़ेगा। और जो कंडीशन हम 19वीं शताब्दी में छोड़ के आए हैं,
आप फिर से वही घटना अब दोहराई जाएगी। न लोग काम करेंगे, न मैं कहेंगे भाई बस तो फ्री है, पैसे देने की क्या ज़रूरत है, चलते हैं ऐसे ही, तो कमाएंगे भी नहीं। फिर बिजली तो फ्री है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, पानी तो फ्री है, हमें क्या करने की ज़रूरत है मेहनत। तो ये सब बातें जो है आने वाला समय में एक बहुत ही मुसीबत का सबब बन सकता है। और ये उस समय बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े थिंकनर बात समझते थे, उन्होंने तो अपने समय में जो हुआ सुधार किए, लेकिन आज हमारा समय है, हमें सुधारने की आवश्यकता है। कहते हैं ऐसे चीज़ों को हमेशा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें ये बात समझाती है कि अंधविश्वास पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें जो है फ्री के दिया हुआ चीज़ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं लोभस्यम पाप कारणम, लोभ करना पाप का सबसे बड़ा सुचालक होता है, और ये शायद लोग नहीं जानते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि लालच बुरी बला है, फ्री में दिया हुआ कोई सामान मत लेना, कोई तुम्हें सामान कोई दे, मिठाई दे या कोई चॉकलेट दे तो बाहरी लोगों से मत लेना। लेकिन हम ही जो है बच्चे बन गए हैं, बच्चे आज समझदार हो गए हैं, और बड़े जो बंदे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आज बच्चे बन के बैठ गए हैं। लालच बुरी वाला है, कभी सीखे नहीं आज तक। चलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये शिक्षा पे आधारित है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा हर बात को तर्क संगत बनाएगा और उसको अपनी मान्यताओं पर, कसौटियों पर सोचेगा। कहते ये सोचा जाता था कि उस समय कि जो औरतों को अगर पढ़ा दिया जाए वो विधवा हो जाएगी बहुत जल्दी, इसलिए औरतों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। इसलिए आज भी देखा जाए तो आम गरीबों को सही जो सुचारू रूप से शिक्षा नहीं मिलती है। कोई बच्चा होता है तब मैक्सिमम जो होता है 10वीं 12वीं तक पढ़ता है, उसके बाद छोड़ देता है। आज अच्छा एजुकेशन तो उच्च वर्ग को ही प्राप्त है, अच्छी नौकरी हो तो उच्च वर्ग को ही मिल रहा है। जो आम व्यक्ति हैं वो मुश्किल से सिपाही बनते हैं, और जो बड़े बड़े घर के बच्चे हैं वो अफसर बनते हैं। इक्का दुक्का बन जाने से कहते हैं पूरा संसार नहीं चेंज हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं इसलिए जो आज देखा जाए जागरूकता की कमी भारतीयों के बीच सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन का मूल्य कारण रही है, और इसलिए महत्वपूर्ण ताकि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए जो जरूरी है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख व फारसी सभी सामाजिक जो है धार्मिक सुधार के विश्वास था कि आधुनिक शिक्षा के हमारे समाज के जागरूक और आधुनिक बना सकती है। कहते हैं जब तक हम सामाजिक धार्मिक सुधारों की विश्वास नहीं करते, आधुनिक शिक्षा नहीं देते, तब तक जो है हमारा समाज में सुधार नहीं हो सकता है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार करना महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया उस समय, और वो मानते थे कि हमारे समाज को जागरूक करने का शिक्षा ही एक प्रमुख प्रभाव उपकरण है, क्योंकि शिक्षा रहेगी तभी जो है माध्यम सही रहेगा और जन सही से चलेगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, बहुत ही ज़रूरी थी, बहुत समझ की बात थी। तो आप भी समझदारी लगाइए, और आपको पता ही है कि फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप भी फ्री में न एजुकेशन लेके, न वीडियो देख के आप भी एक कार्य जरूर कर दीजिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए, कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिएगा तो समझेंगे कि आपने त्रिपाण सेंटर के लिए कार्य कर दिया, आपने एजुकेशन फ्री नहीं ली, नहीं फ्री समझा। सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे जिनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो भी आपको प्राप्त नहीं होगा, और आप कई वीडियो से अनभिज्ञ भी रह जाइएगा। और आपको पता ही होगा कि त्रिपाण सेंटर जो है 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, और यहाँ पर सारे वीडियो जो है आपको उपलब्ध है। ठीक है, ये सारे वीडियो जो होंगे प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध है, जो जहाँ पर आप इसको जो है चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज, क्लास वाइज देख सकते हो।